Good morning, students. Students, last lecture we start the new topic in pharmaceutics. It's your prescription. First of all, what is the mean of prescription? Prescription is a written order by registered medical practitioner to a pharmacist to compounding and dispensing of individual medication to the patient. Okay, this is a prescription. Last lecture we also discussing in that the parts of prescription. Parts of prescription, near about the 8 part of prescription, or this 8 one of the important part of your prescription. In that the first one is your the date. First one था हमारा date. Why the date is needed to involve in prescription? Because it is a very important part of your prescription. Date is a very important part of your prescription. Because of it to avoid the misuse of your prescription, means to avoid the narcotic or other habit forming drug. Misuse of your narcotic and other habit forming a drug. Then the second part is your name, age, sex, address of the patient. Name, age, sex and address of the patient. This is a very important part of your prescription. Why? This part which having help to the identification of prescription. And this part is also help to calculating the dose of patient. This part is also used for the misusing. Or wrong concluding of your prescription. The next one is the third part is your the superscription. You heard about it. Superscription is represented by symbol RX. RX is your Latin word. It means to receive or you take. And this sign is RX is your the sign of God Jupiter. RX is a sign of God Jupiter. The physician or registered medical practitioner to pray God Jupiter, the patient will be healing very quickly. Or patient will be recover very quickly. That is the third part of your prescription is your superscription. The fourth one is your inscription. Inscription is one of the important and heart of your prescription, because in inscription which having involving is your name of ingredient with its quantity. In that inscription, the physician will be ingredient written by the separate line. And inscription which having the divided into the 4 main portion. In inscription are divided into the 4 main portion. First one is your base, second one is your the adjuvant, third one is your the corrective, and fourth one is your vehicle. Okay, base means the active medicament. Base is your active medicament or active material which having produced your therapeutic effect. Like is your painkiller. जैसे मैंने ब्रूफेन का एग्जांपल दिया था. ब्रूफेन 400 mg. Brufen is your the active medicament. The second one is your the adjuvant. What is mean of adjuvant? Adjuvant is a not medicated substances. It is added to support the improve the activity of your base. Means the adjuvant which having added to the enhance the activity of your active medication or active medicine. Third one is your the corrective. We having a prepare the formulation which having including also the corrective. Corrective means the for the purpose of attraction. Why we are adding the corrective? Corrective we have adding because of to improve the effect of formulation. Like is your coloring agent, sweetening agent and flavoring agent which having adding in that. And the last one is your the vehicle. Vehicle is also called as a diluent. Which is used to increase the volume of your formulation. Fifth one था हमारा subscription. Subscription is nothing but the part of your direction to the pharmacist. Okay, MCQ में क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी. सब्सक्रिप्शन यानी क्या? इट्स अ डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, नॉट अ पेशेंट. It's your subscription. Okay, it's a direction
for the pharmacist regarding to the preparing prescription dosage form as well as the number of dose to be dispensed. नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस, कौन सा डोसेज फॉर्म बनाना है और कितने क्वांटिटी और कितने नंबर ऑफ डोसेज फॉर्म और ड्रग प्रोवाइड करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन उस सब्सक्रिप्शन में रहता है. द 6th पार्ट हमने देखा था सिग्ना, सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन. ओके, अब सब्सक्रिप्शन में होगा इट्स अ डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट. देन नेक्स्ट सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, इट्स अ डायरेक्शन फॉर योर पेशेंट. पेशेंट के लिए डायरेक्शन रहता है टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, व्हेन यू टेक द ड्रग or which liquid is suitable for the taking of drug. All of the information regarding the taking of or administration of drug is including in your sign, signature and transcription. The 7th pattern is your the renewal or refills, renewal instruction or refill. Okay, this is indicating in that the every prescription of order. Definitely मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि रिफिल इसलिए मेंशन करता है कि सबसे पहले फिजिशियन आपका डायग्नोसिस करने के बाद कुछ कोर्स पीरियड पे आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करता है. यदि उससे आप फुलफिल होते हो और हीलिंग होना स्टार्ट होता है तो जो भी फिजिशियन है वो क्या करेगा कि वहाँ पे वो कोर्स स्टॉप कर देगा. यदि आपको हीलिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो आपको रिकॉल करके रिफिल करके आपको बोलेगा कि वो ये डोज कंटिन्यू करो, एज वेल एज जो भी मेडिकेशन उन्होंने फर्स्ट प्रोवाइड किया था वो चेंज करके आपको न्यू डोसेस प्रोवाइड किया जाएगा. दैट इज अ रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. एंड लास्ट वन इज योर द सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर प्रिस्क्राइबर. हु इज अ प्रिस्क्राइबर? हियर इज योर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज योर प्रिस्क्राइबर. Who is a registered medical practitioner? Is your physician, and dentist is your registered medical practitioner. ये लास्ट लेक्चर हमने ये 8 parts डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन योर प्रिस्क्रिप्शन इज योर द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हाउ टू हैंडल दिस प्रिस्क्रिप्शन, वन ऑफ द ग्रेट टेक्निक इन दैट. In generally all the activities where we perform for the compounding and dispensing of drug after the receiving prescription, where the collectively is called as a handling of prescription. Handling of prescription. Okay, what is the mean of handling of prescription? अब प्रिस्क्रिप्शन क्या करता है फार्मासिस्ट टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ योर इंडिविजुअल मेडिकामेंट और इंडिविजुअल मेडिकेशन ऑफ योर पेशेंट. तो अब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कब होगा आपका, जब वो प्रिस्क्रिप्शन आपके हैंड में आएगा और उसके बाद जो भी फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करेगा. दिस होल ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. Handling of prescription. The handling of prescription are involving in that the certain step. Is near about the 4 step involving there. 4 step is involving there. First one is your receiving the prescription. Second one is your the reading and checking the prescription. Third one is your the collecting and weighing the material. And fourth one is your the compounding, labeling and packaging of your dosage form. This is a 4 step involving in your handling of prescription. We see one by one what involving in your receiving. First one is this is a handling of prescription. Okay, handling of prescription. First one, जैसे ही आपको फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन राइट डाउन किया तो पेशेंट क्या करेंगे, आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन लाएंगे. सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेंगे. रिसीव करने के बाद आप चेक करोगे ना, यदि आप फार्मासिस्ट है तो चेक करोगे ना, तो ये जो टैबलेट प्रिपेयर है, ये जो टैबलेट मेंशन किया है प्रिस्क्रिप्शन में, वो जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं उसमें वो आपके पास है या नहीं है, कौन सा डोसेज फॉर्म मेंशन किया है, कितने क्वांटिटी ऑफ ड्रग आपको प्रिपेयर करना है, वो आप कैसे जान करोगे कि रीडिंग एंड चेकिंग. अब आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है कि आपको जो इंग्रेडिएंट आपको कंपाउंडिंग के लिए लग रहा है, वो आप क्या करोगे कि कलेक्ट करोगे और वे करोगे. वे करने के बाद आप क्या करोगे कि उसे कंपाउंडिंग करोगे. मीन्स टू स्टार्ट द प्रिपेयर विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म यू नीडेड फॉर द क्यूरनेस, वो हम क्या करेंगे कि वो कंपाउंडिंग करेंगे. आफ्टर द कंपाउंडिंग दैट फिनिशिंग दैट वो डिस्पेंस कर देना है पेशेंट को. दैट इज अ प्रोसेस. सबसे पहला पार्ट है इट्स अ receiving. The first part of your handling of prescription is your receiving. A pharmacist should always receive the prescription from the patient with smile. जब भी फार्मासिस्ट पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है तब फार्मासिस्ट के फेस पे स्माइल आना चाहिए.
Smile is your the particularly facial expression of your pharmacist, and due to this expression the patient will be feel very good. Second point in that, pharmacist should not change his or her facial expression after receiving prescription, otherwise it may be create confusing impression of patient. फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट ने जैसे ही आपका प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया, रिसीव करने के बाद यदि उसने स्माइल देके आपका प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया है, उसके बाद वो जब प्रिस्क्रिप्शन रीड कर रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए. यदि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, अदरवाइज कंफ्यूज हो गया, तो जो पेशेंट है इट विल बी द creating a problem, okay, because his or her facial expression. Hence that the one of the important thing, when you receive the prescription, at a time your face or facial expression is a must, okay. That is the first part of your receiving. Then second one is your the reading and checking. अब आपने प्रिस्क्रिप्शन तो रिसीव कर लिया विथ अ स्माइल, प्रिस्क्रिप्शन आपने रिसीव कर लिया विथ अ स्माइल. सेकंड वन इज योर द रीडिंग एंड चेकिंग. आपने जो प्रिस्क्रिप्शन लिया है वो इतना प्रॉपरली आप रीड करो और चेक करो कि ये इंग्रेडिएंट है या नहीं, कौन सा इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया है, कौन सा डोसेज फॉर्म हमें प्रिपेयर करना है, और कितने नंबर ऑफ ड्रग हमें प्रिपेयर करना है, ये सारा आपको रीड करना है. फार्मासिस्ट ने नियर अबाउट 2 to 3 टाइम तो भी रीड करना चाहिए. देखते हैं हम इसमें क्या पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट, वंस द प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड इट शुड बी रीड वेरी केयरफुली. That is an appropriate time should be given for the reading. जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन टेक किया, उसके बाद क्या करना है, सेकंड फेज क्या आपका रीडिंग एंड चेकिंग. आपने प्रिस्क्रिप्शन जैसे ही लिया उसके बाद आपने वेरी केयरफुली टू रीड इट, और रीड करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए, उसे अप्रोप्रिएट टाइम देना चाहिए. द सेकंड पॉइंट, इफ एनी टाइम सम प्रॉब्लम arise while the reading prescription, the pharmacist should be directly consult with prescriber. Okay. यदि आपके प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है और कुछ ऐसी हैंडराइटिंग से जो आपके फार्मासिस्ट को अंडरस्टैंड नहीं हो रही, तो फार्मासिस्ट का सबसे पहला रोल क्या होगा कि फार्मासिस्ट आपके प्रिस्क्राइबर मीन्स आपके फिजिशियन को डायरेक्टली वो कांटेक्ट करेगा. दैट इज द सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है कि जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आया तो आप वेरी केयरफुली उसे रीड करो, और रीड करने के समय उसे पर्टिकुलरली प्रॉपरली टाइम दो कि कैसे रीड करना है. सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया है, यदि प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, डोसेज फॉर्म क्लियर नहीं हो रहा है, या नंबर ऑफ डोज क्लियर नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है कि फार्मासिस्ट क्या करेंगे एट अ टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलरली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ योर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ योर प्रिस्क्राइबर. थर्ड वन, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक प्रॉपरली बाय फार्मासिस्ट. इट कंसर्न ऑफ डोज ऑफ मेडिकेशन. डेफिनेटली फार्मासिस्ट का यही वर्क है, चेकिंग क्यों करना है प्रॉपरली कि कौन सा डोसेज फॉर्म प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया है और कितने नंबर ऑफ डोज प्रिस्क्राइब किया है, ये चेक करने का वर्क हमारे फार्मासिस्ट का ही रहता है. एंड देन द फोर्थ वन पॉइंट इन दैट, however any guessing or prediction for any illegal and confused word will be create a serious harm to the patient. Okay. अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. यदि आपको प्रिस्क्रिप्शन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली फिजिशियन के पास कांटेक्ट करो, ना कि आप खुद गेस करो या प्रिडिक्शन करो कि ये ड्रग वही है. आप प्रिडिक्शन नहीं करना है पर्टिकुलरली और गेसिंग भी नहीं करना है. यदि आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली यू क्रिएट अ सीरियस हार्म टू द पेशेंट, और दिस थिंग इज अ वेरी डेंजरस टू योर पेशेंट. सो no one our guessing, no one our prediction is a taking there. It's a directly consult with your prescriber and solve the problem whatever involving in there. Okay, that is the second part. First one is a finish. First step is a finish, it's your receiving. Second part is your reading and checking. Okay, third step in that, collecting and weighing. जो इंग्रेडिएंट प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो आपको सबसे पहले कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद वे करना है. जब आप वे करोगे तो प्रॉपर मैनर से वे करना है. वॉट एवर इन दैट
फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीट द चेकिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, आफ्टर कंप्लीट चेकिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड टेक आउट ऑल इंग्रेडिएंट विच वेयर द रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंडिंग। आपने क्या किया कि 2 स्टेप में क्या हुआ कि आपने रिसीव किया और चेक कर लिया कि कौन से इंग्रेडिएंट लग रहे। अब थर्ड फेज में क्या करना है, आपको कंपाउंडिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट लग रहे सबसे पहले आप क्या करो कि कलेक्ट करो। सेकंड पॉइंट, ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल शुड बी केप्ट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बैलेंस। सबसे पहले आपने क्या किया कि इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर लिया। इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने के बाद जो भी इंग्रेडिएंट आपने कलेक्ट किया है वो बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हाफ इंग्रेडिएंट इज अ प्लेस इज योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बैलेंस एंड हाफ इंग्रेडिएंट प्लेस इज अ राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस, बिकॉज उसमें क्या होगा कि मिसिंग हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि कौन सा ड्रग मैंने टेक किया है कंपाउंडिंग के लिए और कौन सा रिमेनिंग रह गया। इसलिए आपको ऐसा ही करना है कि जो भी आप इंग्रेडिएंट कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के बाद उसे लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है। दैट इज द सेकंड पॉइंट, क्लियर। थर्ड पॉइंट, देन स्टार्ट द वेइंग द इंग्रेडिएंट इज अ सिक्वेंशियली मैनर एंड एप्रोप्रिएट क्वांटिटी वाज मेंशन द प्रिस्क्रिप्शन, मेंशन द प्रिस्क्रिप्शन। आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में उसे प्लेस कर दिए। अब जैसे कंपाउंडिंग के लिए आपका इंग्रेडिएंट है उसी मैनर से आपको क्या करना है कि वो वे करना है, और वे एप्रोप्रिएट वे होना चाहिए, एप्रोप्रिएट वे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया है, आफ्टर वन बाय वन वेइंग ऑफ इंग्रेडिएंट द बल्क कंटेनर of ingredient should be placed on right hand side of balance in order to avoid the confusing and mix up। जो मैंने बताया कि आपका जैसे वे हो गया, आपने सबसे पहले कलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था बैलेंस के, आपने वे किया, वे करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो कंटेनर है वो आपको राइट साइड में प्लेस करना है और राइट साइड में होल्ड करना है। क्यों करना है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द मिक्सअप, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, टू अवॉइड द मिक्सअप। तो यही प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट है, वंस द ऑल इंग्रेडिएंट आर गेट वे द केप्ट ऑल स्टॉक बॉटल और योर पोजीशन ऑफ योर शेल्फ। जहाँ से आपने जैसे ही आपका पूरा इंग्रेडिएंट वेइंग हो गया, आपका पूरा इंग्रेडिएंट वेइंग हो गया, तो आपको क्या करना है, जो भी बॉटल से जो भी स्टॉक मटेरियल है आपका, जो भी इंग्रेडिएंट है उसे वापस उसके प्लेस पे मेंशन कर देना है। इट्स अ क्लियर, दैट इज अ कलेक्टिंग एंड वेइंग। और एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि क्या होता है, जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन रीड किया उसके बाद क्या करते हैं आप, एक एक जो मटेरियल है वो कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो कहाँ पे प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड ऑफ योर बैलेंस, बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं इसमें कि आपको जो इंग्रेडिएंट आपने कलेक्ट किए वो वन बाय वन वे करना है, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। और जैसे इंग्रेडिएंट आपका वे हो गया तो उसको क्या करना है कि राइट हैंड साइड पे मेंशन करना है और राइट हैंड साइड पे प्लेस करना है। जैसे राइट हैंड साइड पे क्यों प्लेस करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो और मिक्सअप ना हो आपके इंग्रेडिएंट, इसलिए वो राइट हैंड साइड पे रखना है। जैसे ही आपकी वेइंग अप्रोप्रिएटली हो गई, जो कंटेनर आपने कलेक्ट किए थे, जो बल्क इंग्रेडिएंट आपने कलेक्ट किए थे, वो फिर से उसके प्लेस पे आप प्लेस कर दो। दैट इज अ थर्ड प्रोसेस। अब लास्ट क्या रह गया, इट्स योर नेक्स्ट वन इन दैट द कलेक्टिंग एंड वेइंग। जैसे मैंने बताया, देखो मटेरियल ये बैलेंस है, मटेरियल आपने कलेक्ट किया, कौन से साइड पे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वे किया और उसको क्या रखा है, राइट हैंड साइड पे। ओके, दिस इज डायग्रामेटिक एक्सप्लेनिंग। एंड दैट द फोर्थ पार्ट इज योर द कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ओके, अब आपको सारे इंग्रेडिएंट वे कर लिए अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। नाउ द गोइंग फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ योर ड्रग। आफ्टर द वेइंग, कंपाउंडिंग शुड बी कैरी आउट इन अ नेट एंड क्लीन प्लेस, नेट एंड क्लीन प्लेस। जो भी आपने वेइंग किया है कंपाउंड, जो भी आपने इंग्रेडिएंट वे किया है, अब कंपाउंडिंग के लिए जाना है। और जब आप कंपाउंडिंग करेंगे, जो एरिया में आप कंपाउंडिंग करेंगे वो एरिया आपका वेल और क्लीन होना चाहिए। वाई, टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ एनी इंग्रेडिएंट or any material, to avoid the contamination of any ingredient as well as any material. All the equipment, जो भी इक्विपमेंट लग रहे हैं आपको कंपाउंडिंग करने के लिए, फर्स्ट ऑल इक्विपमेंट आर वेरी क्लीन एंड ड्राई, टू क्लीन एंड ड्राई। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडिंग इन अ वन टाइम। डेफिनेटली
आप एक ही प्रिस्क्रिप्शन एक टाइम पे कंपाउंडिंग करेंगे, यदि मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन एक साथ कंपाउंडिंग करेंगे तो इट विल बी हाइयर चांसेस टू मिक्स अप द इंग्रेडिएंट, हाइयर चांसेस टू द कंफ्यूजिंग देयर. तो हेंस एट अ वन टाइम compounding the one prescription. Next, the compounded material should be transferred into the suitable container. अब आपने जो कंपाउंडिंग कर लिया, जो भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है आपने प्रिपेयर कर लिया. प्रिपेयर करने के बाद क्या करना है कि वो जो फॉर्मुलेशन है, वो जो कंपाउंडेड है, वो आपको क्या करना है कि एक सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर कर देना है. जैसे आपने सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया तो आपके 4 स्टेप की फर्स्ट जो है बीट वो फिनिश हो गया, कंपाउंडिंग हो गया. अब क्या करना है आपको लेबलिंग करना है उस पर, जो कंटेनर में आपने कंपाउंडेड और जो भी फॉर्मुलेशन आपने ऐड किया है उसे क्या करना है, लेबलिंग करना है. अब लेबलिंग कैसे करोगे? द गुड क्वालिटी ऑफ पेपर एंड एडेसिव शुड बी यूज फॉर द लेबलिंग पर्पजेस. अब लेबलिंग पे क्या होता है आपने तो देखा ही है कि लेबलिंग पे मेंशन रहता है कि कितने टाइम पे लेना है, कौन से इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व है उसमें, हर एक पैरामीटर, उसके एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लेबल साइज वगैरह सब इंक्लूडिंग रहता है. वो जो पेपर रहता है आपको इस तरह से पेपर लेना है कि वो पेपर कंटेनर से रिमूव ना हो, पेपर कंटेनर से रिमूव ना हो, उसे इस तरह से स्टिक करना है बाय इंक्लूडिंग द ऑल ऑफ इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट वन, ऑल द इसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शुड बी मेंशन ऑन लेबल. जैसे मैंने बता दिया कि लेबल जब प्रिपेयर करेंगे तो वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन यू नीडेड फॉर द टेकिंग दिस डोसेज form, all the instruction which having putting in the label. The next one, here is your labeling be finished. Last one is your the remaining the packaging. The finally before the dispensing the compounded pack the drug of pharmacist should be explain the mode of administration, direction and use and storage condition. Okay, जैसे आपका पैकिंग हो गया, पैकिंग होने के बाद जब वो डिस्पेंस करेगा, पैकिंग होने के बाद वो फार्मासिस्ट जब डिस्पेंस करेगा, जब पेशेंट को डिस्पेंस करने के टाइम फार्मासिस्ट क्या करेगा कि वो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करेगा कि वो डोसेज फॉर्म आपको कब लेना है. ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा कि ड्रग कब लेना है, कौन से समय लेना है, किसके साथ लेना है. वाटर इज अ बेनिफिशियल फॉर और मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर टेकिंग द dosage form. Okay, this is the 4th step of your handling of prescription. Okay, see the compounding, labeling and packaging. See in this diagram is a clearly indicating in that the compounding, packaging and labeling. What happen in compounding? The only one prescription you have a prescribed at a one time, and okay, see compounding, in compounding the 2 step is involving in there, only one prescription is a handle one time. Okay, why? To avoid the confusion and to avoid the mix up of your ingredient. The accuracy, cleanness and proper technique is a use at the time of compounding. Packaging में क्या आता है? पैकेजिंग में जैसे ही आपकी कंपाउंडिंग हो गई, फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो गया, वो फॉर्मुलेशन को क्या करना है कि आपको सुटेबल कंटेनर में फिल करना है. फिर वो कंटेनर चाहे ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो या मेटल कंटेनर हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो या मेटल कंटेनर है, जो उस फॉर्मुलेशन के लिए सुटेबल है वो हमें सिलेक्ट करना है. एंड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस, जितने क्वांटिटी आपको उस कंटेनर में ऐड करनी है उतनी क्वांटिटी आपको ऐड करना है. इज योर पैकेजिंग. एंड लेबलिंग में क्या करना है? इट्स डिपेंड ऑन योर साइज ऑफ लेबल. ओके, कंटेनर के साइज का ही आपको लेबल लेना है. ऐसा नहीं है कि आपका लेबल बड़ा हो और कंटेनर की साइज छोटी हो. उसके बाद जो आप लेबल यूज़ करने वाले हो, लेबल का जो पेपर रहने वाला है वो पेपर आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए और उस पर स्टिक आप प्रॉपरली करना चाहिए. एक बार स्टिक कर दिया मतलब वो निकलना नहीं चाहिए. यदि वो लेबल आपका निकल गया, क्योंकि लेबल पे आपके सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे डायरेक्शन होते हैं, इसीलिए लेबल आपका निकलना नहीं चाहिए. उसे एडेसिव से प्रॉपरली स्टिक करना चाहिए. ये सारे क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज योर द फिनिश द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. इट्स हाउ मेनी स्टेप इन्वॉल्विंग हियर?
द नियर अबाउट द फोर्थ स्टेप इज द इन्वॉल्विंग हियर। मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है रिसीविंग। जैसे ही आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन कैसे रिसीव करना है? विथ अ स्माइल। जैसे आप स्माइल करोगे तो पेशेंट आधा वहीं पे क्योर हो जाएगा, आधा रिकवर वहाँ पे ही हो जाएगा। आफ्टर दैट उसमें सेकंड पॉइंट था, जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कन्फ्यूजन आप हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो वो उसको एक शॉक लग जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या मेंशन किया है जो फार्मासिस्ट शॉक हो रहा है। सेकंड पार्ट है उसमें रीडिंग एंड चेकिंग। जैसे आपके प्रिस्क्रिप्शन हाथ में आ गया तो आपको वेरी केयरफुली उसे रीड करना है, और इतना अप्रोप्रिएट टाइम देना है आपको रीडिंग के लिए। नियर अबाउट 2 to 3 टाइम आपको रीडिंग करना है। उसके बाद जैसे आपने रीडिंग कर लिया और रीडिंग में कोई कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली प्रिस्क्राइबर के साथ कांटेक्ट करो। कोई भी आपको जज नहीं करना है कि वो इंग्रेडिएंट यही होगा, कोई गेसिंग नहीं करनी है, कोई जज नहीं करना है कि वो इंग्रेडिएंट यही होगा। यदि आप ऐसा करते हो, इट विल बी टेक द हायर रिस्क टू द योर पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा वो। इसलिए आपको क्या करना है कि डायरेक्टली कंसर्न करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आती है हमारी, थर्ड स्टेप इज योर द वेइंग एंड योर कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ योर इंग्रेडिएंट। थर्ड स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट में होगा आपका रिसीव कर लिया, रीड कर लिया। अब क्या करना है कि कंपाउंडिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद क्या करोगे? आपकी बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड रखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्यों रखेंगे? क्योंकि आपका इंग्रेडिएंट मिसमैच ना हो या मिक्सअप ना हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको बैलेंस पे एक्यूरेट वेट करना है। क्या करना है? बैलेंस पे एक्यूरेट वेट करना है। जैसे आप एक्यूरेट वेट करोगे, वेट हो गया तो आपको वो कंटेनर क्या करना है, या जो वे किया है आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड रख देना है। जैसे ही आपका पूरा वेइंग हो गया तो जो कंटेनर आपने निकाले थे इंग्रेडिएंट के, वो आपको फिर से वही प्लेस पे रख देना है। ये हो गया हमारे थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है? इंग्रेडिएंट हो गए, अब आपको करना है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब इंग्रेडिएंट आपको क्या करना है कि कंपाउंडिंग करना है। जब आप कंपाउंडिंग करेंगे तो जहाँ पे आप कंपाउंडिंग करने वाले हैं वो प्लेस आपका नीट और क्लीन होना चाहिए। देन सेकंड वन इज योर, जो भी इक्विपमेंट यूज करने वाले, जो भी एसेसरीज है, बीकर हुआ, फनेल हुआ, जो भी हो, टेस्ट ट्यूब हुआ, मेजरिंग सिलेंडर हुआ, जो भी आप यूज करने वाले वो आपका क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप कंपाउंडिंग स्टार्ट करोगे। जैसे आपकी कंपाउंडिंग हो गई तो आपको क्या करना है कि जो फॉर्मुलेशन आपने प्रिपेयर किया है, कितने क्वांटिटी देना है, वो क्वांटिटी मेजर करके आपको कंटेनर में शिफ्ट करना है। उसके पहले आपको कंटेनर ऐसा सिलेक्ट करना है कि वो फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल हो, फिर वो चाहे प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो या मेटल का हो। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि लेबलिंग करना है। लेबलिंग में आपको सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन करने हैं कि वो डोज कब लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है, कौन से इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व है और कहाँ स्टोरेज रखना है उसे, वो सारा मेंशन रहेगा उसमें। आपने लेबलिंग के लिए ऐसा पेपर यूज़ करना है, गुड क्वालिटी का पेपर यूज़ करना है और गुड एडेसिव यूज़ करना है। एडेसिव यानी क्या? इज द स्टिकिंग मटेरियल, इट्स योर स्टिकिंग मटेरियल। जब आप प्रैक्टिकल के लिए आओगे तो मैं बताऊंगा आपको कि लेबलिंग कैसे की जाती है। तो उसके बाद एप्रोप्रिएट एडेसिव डाल के आपको क्या करना है कि उसे स्टिक करना है, ऐसा स्टिक करना है कि आपका लेबल निकले नहीं। देन थर्ड वन प्रोसेस इज योर जैसे आपको लेबल करना है, लेबल प्रॉपरली करना है। लेबल के बाद क्या आता है कि डिस्पेंस करना है। अब आपका फॉर्मुलेशन हो गया, कंपाउंडिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, अब क्या करना है? पैकेजिंग भी हो गया, अब आपको डिस्पेंस करना है। जब फार्मासिस्ट वो पेशेंट को डिस्पेंस करेगा तब भी उसे पेशेंट को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उस डोसेज फॉर्म का वो बताएगा। हियर इज योर फिनिश द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। द नेक्स्ट वन इज योर द टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। Totally the four type of prescription. First one is your central government health scheme prescription. पहला कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम
prescription, sorry. Second one is your the private prescription, third one is your the hospital prescription, and fourth one is your the veterinary prescription. Okay students, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. इट्स योर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. थैंक यू.